अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम और दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोज़ के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर मज़मून की मुकम्मल तालीमी वीडियोज़ मौजूद हैं। स्टूडेंट्स, आई एम टेकिंग ऑल दिस कंटेंट्स ऑफ दिस चैप्टर फ्रॉम द पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड. Today we are going to discuss about the unit number 4, first aid. First aid means ibtidai tibbi imdad. First of all, I am giving you some brief introduction about this chapter, that what is first aid. First aid is a life-saving technique which people prefer to save lives with minimal equipment. First aid includes simple procedures which are aided with some common senses. It is not classified as a medical treatment and cannot be comparable to a medical professional. It is a special, practical, and immediate care for an injury or sudden illness administered until professional medical help is available. Such emergency care provides self help in case of injury or illness. It is also critical in response to natural disaster. First aid training covers care for wounds and sudden illness, care for specific injuries, accident preventions, and emergency procedures. Most first aid is a combination of practical procedures for non-professional. Such emergency can help the victim until professional medical help appear. The basis of first aid training is prevention. It is perpetually higher to be safe than to be sorry. By gaining the knowledge related to first aid, it promotes the sense of safety and well-being among people, prompting them to be additionally alert and safe within the surrounding they reside in. Awareness and desire to free from accident keep everyone secure, reducing the quantity of casualties and accidents. If an individual who is trained for first aid administration happens to ascertain any casualty in his neighborhood, immediate action may be taken and lives can be saved. Whereas it's natural for many folks to rush to spot any injured, stable person, a trained person is additional, reliable, assured, and up to the mark of himself and his action in the critical situation. First aid means responding to an emergency situation. Accidents happen always unexpectedly, but a life can be saved by having a basic knowledge of what to do in emergency and knowing proper first aid procedure. Basic training in first aid skills should be taught in schools, in workplaces, and in general by learned by all, and as it is mandatory to our modern and stressful life. So students, this was a brief introduction about the chapter first aid. Now we move on to the translation of this chapter. Paragraph 1. We all need help at time in our lives. Sometime we may have accidents and we may get hurt. When we are injured or suddenly become unwell, we need someone to help us, someone who knows what to do. हम सबको अपनी ज़िंदगियों में बाज़ औक़ात मदद की ज़रूरत पड़ती है। कभी कभार हमें हादसात पेश आ सकते हैं और हम ज़ख्मी हो सकते हैं। जब हम ज़ख्मी हो जाते हैं या अचानक बीमार हो जाते हैं तो हमें किसी की ज़रूरत होती है जो हमारी मदद करे, कोई ऐसा शख्स जो जानता हो कि क्या करना है। It is the temporary and immediate help. This timely assistance, comprising of simple medical techniques, is most critical to the victim and is often life-saving, and layperson
can be trained to administer first aid. The first aid can be carried out using minimal equipments. First aid knowledge ranges from taking care of cuts to dealing with an unconscious victim. ये आर्जी और फिल फॉर मदद होती है। ये बर वक्त मदद जो सादा तिब्बी महारतों पर मुश्तमिल होती है मुतासरीन के लिए इंतहाई अहम होती है और अक्सर औक़ात जान बचाने वाली साबित होती है। किसी भी आम शख्स को इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने की तरबियत दी जा सकती है। ये इब्तदाई तिब्बी इमदाद कम से कम साजो सामान इस्तेमाल करते हुए सरंजाम दी जा सकती है। इब्तदाई तिब्बी इमदाद के इल्म का दायरा कार में ज़ख्मों की निगहदाश्त से लेकर एक बेहोश मुतासरा फ़र्द का इलाज तक शामिल है। स्टूडेंट्स, दिस इज़ अ क्वेश्चन इन अ बॉक्स, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉलेज ऑफ फर्स्ट एड इन क्राइसिस मैनेजमेंट। हाँ जी, जो मुश्किल सूरत हाल होती है उसमें फ़र्स्ट एड की क्या अहमियत होती है। सो द आंसर इज़ इट्स इम्पोर्टेंस इज़ डैट इट हेल्प्स अस टू सेव द लाइव्स ऑफ दोज हु गेट सीरियसली इंजर्ड। ये इसकी अहमियत इतनी ज़्यादा है कि अगर कोई शख्स शदीद ज़ख्मी हो जाए और उसकी जान बचाने में मदद देती है ये, ठीक है। Now there are some difficult words, pronunciation, meanings and synonym related to the paragraph number 1. First one is hurt. Hurt को हम ऐसे pronounce करेंगे और इसका meaning है ज़ख्मी करना means injured. Injured means ज़ख्मी, wounded. Crisis बहरान या disaster. Immediate फौरन, instant. Assistance मदद, help. Victims मुतासरीन, sufferer. मिनिमल कम से कम, स्लाइटेस्ट. अनकॉन्शियस बेहोश होना, सेंसलेस. नाउ देर आर सम डिफ़िकल्ट वर्ड्स एंड देयर sentences related to the paragraph number 1. First one is hurt. She was badly hurt in a car accident. Injured. I think the tube must have injured my larynx. Crisis. She was dealing with a family crisis. बेटा यहाँ पर कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स के सेंटेंसेस बना दिए गए हैं। बाकी जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनके आपने ख़ुद से प्रैक्टिस करनी है घर पे एज अ होमवर्क सेंटेंस को बनाने की। डिफ़िकल्ट वर्ड्स के आपने स्पेलिंग्स को याद करना है, सिनोनिम्स को, प्रोनाउंसिएशन, मीनिंग्स, इन सब को आपने याद करना है। नाउ वी मूव ऑन टू द सेकंड पैराग्राफ, कट्स एंड स्क्रैप्स. Handling minor accident at home or on the road develops a sense of crisis management. This may prepare people to tackle with unexpected emergencies with great confidence. Minor cuts and scrapes usually do not need to go to the emergency room, yet proper care is essential to avoid infection or other complications. Following guidelines can help you to handle crisis and take care of all. घर या सड़क पर होने वाले मामूली हादसात से निपटना हंगामी हालात को संभालने का शऊर पैदा करता है। ये लोगों को गैर मुतवक्के हंगामी सूरत हाल से नहायत हौसले के साथ सामना करने के लिए तैयार कर सकता है। मामूली ज़ख्मों और ख़राशों के लिए एमरजेंसी रूम में जाने की ज़रूरत नहीं होती, ताहम मुतअद्दी अमराज और दूसरी पेचीदगियों से बचने के लिए मुनासिब एहतियात लाजमी है। मुंदरजा झेल हदायत आपको तशवीशनाक सूरत हाल से निपटने और सब का ख्याल रखने में मदद दे सकती हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 3, स्टॉप द ब्लीडिंग. माइनर कट्स एंड स्क्रैप्स यूजुअली स्टॉप ब्लीडिंग ऑन देयर ओन. If they don't, apply gentle pressure with a clean cloth or bandage. Hold the pressure continuously for 20 to 30 seconds and if possible, elevate the wound. मामूली ज़ख्मों और ख़राशों का बहता हुआ खून अमूमन खुद ही रुक जाता है। अगर उनका खून ना रुके तो एक साफ़ कपड़े या पट्टी से हल्का सा दबाएं। दबाव को मुसलसल 20 से 30 सेकंड तक कायम रखें और अगर मुमकिन हो तो ज़ख़म को ऊंचा रखें। डोंट कीप चेकिंग टू सी इफ़ द ब्लीडिंग हैज़ स्टॉप्ड बिकॉज दिस मे डैमेज और डिसलॉज द क्लॉट दैट इज़ फॉर्मिंग एंड कॉज ब्लीडिंग टू रिज्यूम. If blood spurts or continue flowing after continuous pressure, seek medical assistance. बार बार मत देखें कि खून बहना रुक गया है कि नहीं, क्योंकि इस तरह बना हुआ कुरन जो है वो ख़राब या अपनी जगह से हट सकता है और खून का बहाव दोबारा शुरू हो सकता है. अगर खून फूट कर निकल रहा हो या ज़्यादा निकल रहा हो या मुसलसल दबाव के बाद भी मुसलसल बह रहा हो तो तिब्बी इमदाद के लिए डॉक्टर की तरफ रुजू करें.
Students, there are some difficult words, their pronunciation, meanings and synonym related to the paragraph number 2 and 3. First one is tackle. Tackle means nimatna, take care of. Scraps, kharasheं means scratch. Essential, zaruri, necessary. Complication, पेचीदगियाँ means problems. Bandage, पट्टी. Dressing, dislodge, जगह से हटा देना, remove करना. Spurt, तेज़ी से निकलना. Erupt, clot, खून का लोथड़ा, mass of blood. There are some difficult words and their sentences. First one is tackle. I'll tackle my homework later. Scraps, I have gotten small scraps by the accident. Essential, careful preparation for exam is essential. Next, paragraph number 4. Clean the wound. Rinse out the wound with clear water to clean the area around the wound. Use soap and a washcloth. But soap can irritate the wound, so try to keep it out of the actual wound. If dirt or debris remains in the wound after washing, use tweezers cleaned with alcohol to remove the particle. If debris still remains, see your doctor. Thorough cleaning reduces the risk of infection and tetanus. साफ़ पानी से ज़ख़म को धोएं. ज़ख़म के इर्द गिर्द की जगह साफ़ करने के लिए साबुन और धोने का कपड़ा इस्तेमाल करें, लेकिन साबुन से ज़ख़म पर ख़ारिश हो सकती है, इसलिए उसे असल ज़ख़म से दूर रखें. अगर मिट्टी और दीगर फालतू ज़रात धोने के बाद भी ज़ख़म में हों तो इन ज़रात को हटाने के लिए अल्कोहल से साफ़ शुदा ट्वीज़र जो है उसका इस्तेमाल करें. अगर फालतू ज़रात अभी भी कायम हैं तो डॉक्टर से रजू करें. मुकम्मल सफाई जो है वबाई मर्ज़ और तशन्नुज के ख़तरे को कम करती है. नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 5. अप्लाई ऑन एन एंटीबायोटिक. आफ्टर यू क्लीन द वाउंड, अप्लाई अ थिन लेयर ऑफ एन एंटीबायोटिक क्रीम और ऑइंटमेंट to help keep the surface moist. The products don't make the wound heal faster, but they can help your body's natural healing process work fast. Certain ingredients in some ointment can cause a mild rash in some people. If a rash appears, stop using the ointment. जब आप ज़ख़म को साफ़ कर लें तो सतह की नमी बरकरार रखने में मदद के लिए किसी जरासीम कुश दवा या मरहम की पतली सी तह लगाएं. ये मसनूआत ज़ख़म को जल्दी मुनहदिम या मुकम्मल करने नहीं देती, बल्कि ये आपके जिस्म के कुदरती सेहतयाबी के अमल को तेज़ करने में मदद कर सकती हैं. कुछ मरहमों में मखसूस अज्जा बाज़ लोगों में हल्की सी सुर्खी का बाइस बन सकते हैं. अगर ऐसा हो तो उस दवा को या मरहम को लगाना छोड़ दें. Students, there are some difficult words, their pronunciation, meanings and synonym related to the paragraph number 4 and 5. First one is rinse. Rinse mean धोना, wash करना. Irritate, सूजन पैदा करना. Inflame या inflammation भी हम इसको कह सकते हैं. Debris, मलबा means waste. Tweezers, मोचना. Instrument, ointment, मरहम means cream. Wound, ज़ख़म. Injury. Ingredients, अज्जा means components. Mild, खफीफ या हल्का सा, इसको हम light भी कह सकते हैं. There are some difficult words and sentences related to the paragraph number 4 and 5. First one is rinse. Let me just rinse my hands. Irritate, don't irritate me. Debris, several people were injured by flying debris in explosion. बेटा यहाँ पर कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स के सेंटेंसेस बना दिए गए हैं. बाकी जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स रह गए हैं उनकी आपने ख़ुद से घर में प्रैक्टिस करनी है. इन डिफ़िकल्ट वर्ड्स के स्पेलिंग्स को याद करना है, सिनोनिम्स को याद करना है, मीनिंग्स को याद रखना है आपने, प्रोनाउंसिएशन को आपने याद करना है, यानी कि देखना है इसको, ताकि आपको ट्रांसलेशन में आसानी हो. ठीक है. और यहाँ पर जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको आपने उनके स्पेलिंग्स को ख़ास तौर पर याद रखना है. Next, cover the wound. Paragraph number 6. Bandages can help keep the wound clean and keep harmful bacteria out. After the wound
has healed enough to make infection unlikely, exposure to the air will speed wound healing. ज़ख़म को ढांपना। पट्टियाँ ज़ख़म को साफ रखने और नुकसानदेह बैक्टीरिया को दूर रखने में मदद कर सकती हैं। जब ज़ख़म काफ़ी हद तक मुंदमिल हो जाए कि वबाई मर्ज़ का ख़तरा ना रहे, तो इसके बाद हवा लगने से ज़ख़म तेज़ी से ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 7, चेंज द ड्रेसिंग। पट्टियाँ तब्दील करना। चेंज द ड्रेसिंग एट लीस्ट डेली और वेन एवर इट बिकम्स वेट और डर्टी। इफ़ यू आर एलर्जिक to the adhesive used in most bandages, switch to the adhesive-free dressing or sterile gauze held in place with paper tape, gauze roll or a loosely applied elastic bandage. These supplies generally are available of pharmacies. पट्टियाँ कम अज़ कम रोज़ाना तब्दील करें या जब कभी वो गीली या गंदी हो जाए। ज़्यादातर पट्टियों में इस्तेमाल किए जाने वाले चिपकने वाले मादे से अगर आपको एलर्जी हो तो चिपकने वाले मादे के बगैर वाली पट्टियाँ या जरासीम से पाक जालीदार कपड़ा जिसे उस जगह पर कागज़ी टेप से चिपकाया जाए, जालीदार मरहमी रोल पट्टी या कोई ढीली ढाली लचकदार पट्टी इस्तेमाल करें। ये अशिया अमूमन दवाखानों से में दस्तयाब होती हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 8, वॉच फॉर साइंस ऑफ इन्फेक्शन। वबाई मर्ज़ की अलामात पर गौर करना। See your doctor if the wound is not healing or you notice any redness, increasing pain, drainage, warmth और swelling. अपने मौलिज या डॉक्टर से रजू करें अगर ज़ख़म जो है वो मुंदमिल नहीं हो रहा या आप कोई सुर्खी माइल रंगत, बढ़ता हुआ दर्द, ज़ख़मों से निकलता पानी, हरारत या सूजन महसूस कर रहे हैं तो आपको फ़ौरन अपने डॉक्टर से रजू करना चाहिए। Students, there are some difficult words, pronunciation, meanings and synonym related to the paragraph number 6, 7 and 8. First one is harmful, means नुकसानदेह, damaging. Next, heal, सेहतयाब होना, cure. Speed, रफ्तार, means rate. Adhesive, चिपकने वाला, means sticky. Sterile, जरासीम से पाक. Disinfected, ड्रेनेज, रतूबत का बहाव या सिस्टम ऑफ ड्रेन. स्वेलिंग, सूजन. इन्फ्लेमेशन, गॉज, जालीदार कपड़ा, मीन्स थिन फैब्रिक. देर आर सम डिफ़िकल्ट वर्ड्स एंड देयर सेंटेंसेस. हार्मफुल, स्मोकिंग इज़ हार्मफुल टू योर हेल्थ. हील, you've got to give the injury time to heal. Speed, the machine was operating at high speed. बेटा यहाँ पर जितने डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनमें से कुछ के सेंटेंसेस बना दिए गए हैं, बाकी आपने खुद से घर में प्रैक्टिस करनी है और कोशिश करिएगा आसान लफ्ज़ों में अपने सेंटेंसेस को बनाएं, ठीक है। और यहाँ पर सिनोनिम्स हैं, प्रोनाउंसिएशन, मीनिंग्स और डिफ़िकल्ट वर्ड्स के स्पेलिंग्स को लाजमी तौर पर आपने याद रखना है। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पैराग्राफ, फर्स्ट एड किट. डेट व्हाट इज़ फर्स्ट एड किट, उसके अंदर होता क्या क्या और ये किस काम आती है। एवरी ऑफिस, फैक्ट्री, होम एंड स्कूल शुड हैव an accessible first aid box with the following recommended basic contents. हर दफ्तर, कारखाना, घर और स्कूल में मुंदरजा झेल अज्जा पर मुश्तमिल एक काबिल पहुँच इब्तदाई तिब्बी इमदाद का डब्बा होना चाहिए। फर्स्ट वन, फर्स्ट एड बुक. पहले नंबर पे इब्तदाई तिब्बी इमदाद की किताब होनी चाहिए. क्लियरली एक्सप्लेन्स हाउ टू हैंडल द बेसिक प्रॉब्लम्स. ये वजाहत से बयान करती है कि बुनियादी मसाइल को कैसे हल करना है। यानी कि अगर आपको कभी एमरजेंसी में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आपके पास अगर आपको नहीं उस बारे में पता तो आप इस बुक की मदद से उस चीज़ को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट, बैंड एड्स यानी प्लास्टर्स. बैंड एड्स और स्टिकी प्लास्टर आर गुड फॉर ड्रेसिंग स्मॉल वाउंड्स. दे कम इन ऑल शेप्स एंड साइज for fingers, legs and anywhere else you might get little cuts. Make sure the band-aid is big enough to cover the wound. If not, you should use a dressing instead. इमदादी पट्टियाँ या प्लास्टर्स. छोटे ज़ख्मों की मरहम पट्टी करने के लिए इमदादी पट्टियाँ या चिपकने वाला प्लास्टर्स अच्छे होते हैं. ये उंगलियों, टांगों और किसी भी जगह के लिए तमाम अशकाल और जिसामत में मौजूद होते हैं.
अगरचे आपके ज़ख़म छोटे हों, लेकिन इस बात का यकीन कर लें कि इमदादी पट्टी इतनी बड़ी हो कि ज़ख़म को ढांप सके। अगर ऐसा नहीं तो आप उसकी बजाय बड़ी मरहम पट्टी इस्तेमाल करें। इलास्टिक बैंडेजेस। तीसरे नंबर पे आपकी जो फर्स्ट एड किट है उसके अंदर क्या होना चाहिए? इलास्टिक की लचकदार यानी पट्टियाँ होनी चाहिए। द इलास्टिक बैंडेजेस आर गुड फॉर रैपिंग स्प्रेन्ड और जॉइंट्स और मेकिंग अ स्लिंग इन द केस ऑफ अ ब्रोकन आर्म। मोच आए हुए जोड़ों पर लपेटने और टूटे बाजू की सूरत में गले में लटकाने वाली पट्टी बनाने के लिए लचकदार पट्टियाँ अच्छी होती हैं। There are some difficult words, pronunciation, meanings and synonym related to these paragraphs. First one is accessible, means काबिल रसाई, reachable, recommended, सिफारिश करदा, suggested, basic, बुनियादी, means fundamental, cover, ढांपना या ढकना, means protect, wrapping, लिफाफा, envelope, sprained, मोड़ना, means twist, broken, टूटी हुई, smashed, स्लिंग लटकने वाली, हैंग। एक्सेसिबल का सेंटेंस है द म्यूजियम इज़ इजीली एक्सेसिबल बाय पब्लिक। रिकमेंडेड दिस बुक इज़ हाईली रिकमेंडेड बाय टीचर। बेसिक द बेसिक आइडिया इज़ सिंपल। नेक्स्ट फोर्थ वन क्या होनी चाहिए हमारी फर्स्ट एड किट के अंदर? गॉज एंड एडहेसिव टेप, जालीदार कपड़ा और चिपकाने वाली टेप होनी चाहिए। Gauze pads or rolls are cloth pads that are placed directly on a wound to protect and control bleeding. For larger cuts and scrapes, you will need adhesive tape to keep the gauze in place. In an emergency, a clean cloth, hand towel, clean t-shirt can be used to cover the wound. जालीदार पैड या रोल कपड़े की गद्दियाँ होती हैं जो कि बहते हुए खून को रोकने और बचाव के लिए ज़ख़म पर बराह रास्त रखी जाती हैं। जाली को अपने मकाम पर रखने के लिए आपको चिपकाने वाली टेप दरकार होगी। फौरी हादसे की सूरत में कोई साफ़ सुथरा कपड़ा, तौलिया, साफ़ सुथरी कमीज़ भी ज़ख़म को ढांपने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। पाँचवें नंबर पे एंटीसेप्टिक वाइप्स यानी कि जिसको हम अल्कोहल जिसके अंदर मौजूद होता है, एंड कॉटन वूल्स यानी कि ज़ख़मों को धोने की जरासीम कुछ अद्वियात और रुई जो है वहाँ पर यूज़ की फर्स्ट एड किट में होती है। 6 नंबर पे सेफ्टी पिन्स एंड ट्वीज़र्स, हिफाजती पिने और ट्वीज़र्स मौजूद होते हैं। 7 सीजर्स यानी कि कैंची होती है वहाँ पर। अ पेयर ऑफ सीजर्स इज़ नीडेड टू कट द टेप एंड गॉज, टेप और जालीदार कपड़े को काटने के लिए कैंची की ज़रूरत होती है। 8th वन लेटेक्स ग्लव्स यानी कि रबड़ के दस्ताने। लेटेक्स ग्लव्स आर ऑलवेज अ गुड आइडिया स्पेशली इफ़ यू आर डीलिंग विद बॉडी फ्लड्स फ्रॉम अ स्ट्रेंजर। 9th कैलामाइन लोशन, हाँ जी एक सुकून आवर्ड लोशन जो है वो चाहिए होता है। कैलामाइन लोशन इज़ यूज्ड फॉर सूदिंग सनबर्न एंड स्टिंग्स। सुकून आवर्ड लोशन जो है वो डंक और लू के असरात से बचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 10th वन क्लिनिकल थर्मामीटर यानी कि थर्मामीटर इस्तेमाल किया जाता है। और लास्ट में एनर्जेसिक टैबलेट्स सच एज एस्प्रिन और पैरासीटामोल, फौरी असर करने वाली अद्वियात जैसा कि एस्प्रिन या पैरासीटामोल हैं वो भी उस फर्स्ट एड किट के अंदर रखी जाती है। There are some difficult words, pronunciation, meanings and synonym related to these paragraphs. First one is protect, means हिफाजत, save, control, रोकना, means command, clean, साफ करना, washed, stranger, अजनबी, unknown, sting, dunk, means swindle, tablet, गोलियाँ, medicine, idea, ख्याल या सोच, means plan, dealing, लेन देन, business, gloves, दस्ताने, means mutton. Sentences related to these paragraphs. First one is protect, you have to protect him. Control, you have to learn to control yourself. Clean, I am cleaning my room. बेटा आई होप आपको इस चैप्टर की अच्छी तरह समझ आ गई होगी। जितनी भी आपको डिफ़िकल्टीज़ हैं उसके लिए आप दोबारा से वीडियो से कंसर्न कर सकते हैं। आप इसके अंदर जो भी मसला होगा आप ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स को देखें, उनकी प्रोनाउंसिएशन, मीनिंग्स, ट्रांसलेशन, हर चीज़ को देखें। और ये आपका होमवर्क भी है कि आपने इनको घर पे प्रैक्टिस करना है। बच्चों अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली हर वीडियो से आगाह रह सकें। शुक्रिया।